परम पूज्य सोना रिम्पोचे की दूरदर्शी सोच और प्रयासों से, परम पावन दलाई लामा के आशीर्वाद से भारत के टेलीविजन इतिहास में पहली बार शुरू हुआ है एक टेलीविजन कार्यक्रम जो समर्पित है भगवान बुद्ध के दर्शन, ज्ञान और बौद्ध परंपराओं को। कार्यक्रम में दुनिया के तमाम बड़े बौद्ध धर्मगुरु, बौद्ध ज्योतिष शास्त्री रोज आप तक पहुंचा रहे हैं अमूल्य जानकारियां। सबसे पहले देखिए बौद्ध धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं। कार्यक्रम शेराप सेंगपो आपको हर रोज भगवान बुद्ध और उनके दर्शन से रूबरू करा रहा है। इस कार्यक्रम में हर रोज आप भारत के अलग अलग हिस्सों में रह रहे बौद्ध धर्मावलंबियों की जिंदगी और भगवान बुद्ध में उनकी अपार आस्था से रूबरू होते हैं। परम पूजनीय द 13 सोना रिम्पोचे के साथ परम पूजनीय प्रोफेसर सैम डोंग रिम्पोचे मठ में प्रवेश करते हैं। मठ में प्रवेश करने के बाद परम पूजनीय सबसे पहले भगवान बुद्ध की मूर्ति के सामने दीप प्रज्वलित करते हैं। भगवान बुद्ध के बाद परम पूजनीय गुरु पद्म संभव का भी नमन करते हैं। गुरु पद्म संभव का बौद्ध धर्म में अहम स्थान है। उन्हें द्वितीय बुद्ध भी कहा जाता है। नमन करने के बाद परम पूजनीय प्रोफेसर सैम डोंग रिम्पोचे पधारते हैं बोमडिला मॉनेस्ट्री के अतिथि कक्ष में। यहाँ पर तमाम लामा आकर उनका परंपरागत ढंग से अभिवादन करते हैं। परम पूजनीय के स्वागत के लिए बोमडिला मॉनेस्ट्री ने कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। उनके स्वागत की तैयारियां खुद ही मॉनेस्ट्री के प्रमुख परम पूजनीय द 13 सोना रिम्पोचे की देखरेख में थी। अपने अगले एपिसोड में भी हम आपको दिखाएंगे परम पूजनीय प्रोफेसर सैम डोंग रिम्पोचे की बोमडिला यात्रा को। कैसे दूर हो आपके जीवन की मुश्किलें, कैसे सवरे आपका करियर, कैसे सफल हो आपका हर काम, क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे। जानिए सटीक होने वाली बौद्ध भविष्यवाणियां। Trustele, Namaste. 18th January 2011, Tuesday and 14th lunar day of 11th month. The elemental combination is fire, wind, and it is a good one where it brings auspicious to you, and doing religious ceremonies, praying to deities, practice of Dharma is very good. Especially good for doing Naga Puja as there is Stuthi in this day, and most favorable timing is between 6 to 7 a.m. The day is good for people of horse and snake, and since it is Magh Nangu, so army or anyone going to war should be avoided. This day is of Sojong, thus a good day for generating more marriage and to purify negative deeds. A good day to adopt new pets, fighting for court cases, amending of house from, and however, it is not a good day to share one's secret or to have secret discussions. Changing of residence, to send wealth or parcel, and are not a favorable day, and particularly bad day for people who are born under bird and monkey.
Pumdong or empty was is at east direction, so important activity should not be done while facing east. 19th of January 2011, Wednesday and 15th lunar day of 11th month. The elemental combination is water and water, which is a very good combination, and it is eligible to bring strength in life. Starting of new ventures, promotion of commerce, marriage ceremony, and dealing family matters are very much auspicious. Plantation of trees and flowers, journey or shifting of residence is favorable. This day is especially good day for people who are born under mouse and pig animal signs. However, as BT appears from 9:12 p.m. onwards from north to south direction, so avoid undertaking Tarsik therapies like bloodletting and moxibations. Since it is Nyang, so it is inauspicious for parties among friends and relatives, or parties for seeking new relationship. Pomdo or empty was is at east direction, so important activities should not be done while facing east. This day is bad day for people who are born under horse or snake. 20th January 2011, Thursday and 16th lunar day of the 11th month of Iron Tiger year. Elemental combination is wind and wind, which is a good elemental combination, and this combination has inspiring energy that fulfills one's wishes without delaying. Good day for taking decisions, and most of your plan and project can be accomplished successfully. Since it is Kaginambu, so avoid any kind of construction work like renovation of house or laying of foundations. This day is especially good day for people of tiger and rabbit years. And Pomdong or empty was is at east direction, so important activity should not be done while facing east. Thanks for watching, and see you tomorrow at the same channel at same time. बुद्धं शरणं गच्छामि। क्या है भगवान बुद्ध का दर्शन, बौद्ध धर्म का गूढ़ ज्ञान, कैसे मिले दुख से मुक्ति, कैसे पाएं बुद्धत्व, क्या है धम्मम, क्या है संघम। ये कार्यक्रम आपको हर रोज दे रहा है ऐसे तमाम सवालों के जवाब। आज बौद्ध धर्म के प्रकांड विद्वान प्रोफेसर सैमडोंग रिम्पोचे से जानिए भगवान बुद्ध का दर्शन और बौद्ध धर्म का सही ज्ञान। प्रथम, मनुष्य जिस कुल में, जिस कुटुंब में, जिस गांव में, जिस क्षेत्र में जन्म लेते हैं, वह अपने स्वेच्छा से, अपने चैन से नहीं लेते हैं। हम कर्म की सिद्धांत मानने वाले की दृष्टि से देखा जाए तो अपने पूर्व कर्म की फलस्वरूप हम एक क्षेत्र विशेष में, कुल विशेष में, परिवार विशेष में जन्म लेते हैं। अपने मर्जी से हम बनी बने हैं, विपन्नी बने हैं, या आसामी या जो भी कुछ हो, अपने मर्जी से नहीं बने हैं। वह एक आजाद कर्म का प्रतिफल है, उसकी शक्ति है, जिसने हम एक कुल विशेष में जन्म लिया। अगर आप ईश्वरवादी हैं तो इसमें एक कदम आगे चले जाते हैं। जगत कर्ता ने, ईश्वर ने एक विशेष प्रयोजन के लिए, एक विशेष उद्देश्य के लिए हर व्यक्ति को एक विशेष स्थान पर जन्म देते हैं। उस जन्म से हमें एक
विशेष प्रकार के काय प्राप्त होते हैं, वाक प्राप्त होते हैं और चित्त प्राप्त होते हैं। कोई आदमी मनुष्य की शारीरिक विद्या की जानकारी है तो वो आपकी शक्ल देख करके लगभग तय कर लेंगे कि ये कहाँ, किस देश के, किस राष्ट्र की, किस क्षेत्र के आदमी हैं। वो काया की बनावट विशेष बनते हैं। वाक्य भाषा के रूप में हर क्षेत्र की अपनी भाषा होता है और भाषा का अंतर्गत भी अनेक बोलियां होते हैं और उससे उस व्यक्ति विशेष का पहचान बनते हैं। काया और वाक्य की विशेषता के साथ साथ सोचने की प्रणाली भी हर मनुष्य में कुछ न कुछ विशेषता रहता है और हर क्षेत्र की, हर प्रदेश की और हर कुल की एक विशेष चित्तवृत्ति रहता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से वो अपने सोच का भी एक पहचान रहते हैं। ये तीनों मिलकर के मनुष्य की अस्मिता बनते हैं, मनुष्य की पहचान बनते हैं और वह संपूर्ण संस्कार की और संस्कृति के आधार होते हैं, जिसके बिना वह व्यक्ति संस्कारवान नहीं बन पाते हैं और सुसंस्कृत नहीं बन पाते हैं, कल्चरल नहीं होगा। जो अपने अस्मिता खो लेते हैं, अपने काय और वाक और चित्त की जो विशेषता है वो खो देते हैं, तो वो अपने अस्मिता खो देते हैं, तो वो मनुष्य फिर कोई मानव कहलाने की योग्यता लगभग खो देते हैं। कर्म के बल से अथवा ईश्वरवादियों की तरह ईश्वर की इच्छा से सबको एक ही समान बना सकते थे, यह असंभव नहीं था। परंतु ये एक विशेष प्रयोजन से यह असंभव हो गया। आज इस विश्व में कई खरब मनुष्य हैं, लेकिन उसमें से ऐसा 2 मनुष्य नहीं मिलेगा जिसकी शक्ल एकदम सम हो, एक जैसे हो। जुड़ाव पाए में भी दूर से देखने में एक जैसा लगते हैं, लेकिन निकट आने पर वो दोनों में कुछ भिन्नता है, विशेषता है, पृथकता है, जिसको व्यक्ति कहते हैं, समष्टि नहीं है, विशिष्ट है। और ये विशिष्ट केवल मनुष्य को एक अस्मिता देने के लिए ही होता है। तो इसलिए अपने जो अस्मिता है मौलिक, वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर वो कहीं नष्ट हो जाए, खो जाए, दूसरों की नकल उतारते हुए या पश्चात की अनुसरण करते हुए हम अपने कायिक, वाचिक और मानसिक की विशेषता है, विशिष्ट हैं, व्यक्तित्व हैं, उसको छोड़ देंगे या उसको खो देंगे तो वह मनुष्य की कर्तव्य पालन नहीं कर सकते हैं, वो धर्मनिष्ठ नहीं हो सकते हैं, वो धार्मिक आदमी नहीं बन पाएंगे, वो केवल एक नकलची बनेगा। तो इसलिए मेरा प्रथम अनुरोध है कि हर व्यक्ति जिस गांव की हैं
जिस प्रदेश की हैं, जिस कूट की हैं, वहां से मिले हुए अपने अस्मिता को, अपने व्यक्तित्व को महत्व दें, उसको खोए नहीं, उसके ऊपर बाकी चीजों का आप संचय कर सकते हैं, सृजन कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, लेकिन अपने मूलता को नहीं खोना चाहिए। ये अत्यंत महत्वपूर्ण चीज है। प्राचीन काल में ये खोने का खतरा नहीं था। सब लोग एक अधिकांशता कुल और कुटुंब के बीच में जीवन व्यतीत करते थे। आज वैश्वीकरण की दौर में ये खोने की खतरा बहुत अधिक हो गए हैं, और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि आप इस खतरे से कोई बच नहीं सकते, बचने के उपाय नहीं है। ऐसा मानने वाले लोग, मैं तो ऐसा नहीं मानता। अगर चाहें तो हम बच सकते हैं। इस वैश्वीकरण की दौर में अपने अस्मिता को, अपने व्यक्तित्व को, अपने स्थानीयता को, वैश्वीकरण का मूल प्रतिपक्ष है स्थानीयता। The localization is the key factor to face the problems of globalization.